Hello and very good morning, students of class 10th E. I hope you all are well, my dear students. First of all, I just want to say welcome you in my class. Dear students, on my previous class that was on Saturday, we have started the new topic that was topology. So, my dear student, as you know, this is not a new topic exactly for you all because you have already learned this topic in your earlier classes in even 8th, 9th, and now we are learning in class 10th as well. So, I think you are very familiar with this topic. The topic was topologies, okay? And I told you there are mainly 6 type of topologies. You remember that, right? There are mainly 6 type of topologies. These topologies are, can anyone tell how many types of topologies are there total? Six type. 6 type. Can I name them? So star topology, Yes. ring topology, Huh? bus topology, Huh? mesh topology, Huh? tree topology, Huh? and Hibernate topology. Hybrid topology. hybrid. Hybrid. Okay. So there are mainly 6 type of topology, and in this topology we have discussed 2 topologies. That is bus topology and second is ring topology. I have discussed these 2 topologies. Remember, and if you don't find it, you will just go to the video lecture. You will just go to my YouTube channel, Siddhartha Tech Guru, and watch the channel. And even you can find this explanation in video lecture number 12. Okay. So go to your WhatsApp as well. You can find the video lecture, recorded video lecture. No problem in this. Now, my dear student, we have discussed in bus topology and ring topology. So do you have any problem in this too? Tell me. No, sir. Okay. Now let's start the next topology, that is ring topology. I think, okay, let's start now. Can you see the page, my dear students? Yes, sir. Okay. You can see that. You can see that what is star topology. You can see that this is star topology, my dear student. This is star topology. You can see that easily that in star topology there is a central computer called hub or switch. There is central computer. There the computer which is centralized, and all the nodes are connected with this. So this type of arrangement is called star topology. So the stuff, if I can, if I'm trying to explain star topology again. So star topology is a kind of arrangement. So if I'm talking about star topology, so my dear student, what is star topology? In star topology, there is a central computer called hub or switch. Hub, which is placed at center, and all the nodes, you can say all the computers are connected with this centrally located hub. This is hub. Okay. This computer A, computer B, C, computer D. This is how we have to manage our computer. There are this centrally located computer called hub where all the nodes are connected with each other. This is centrally located. The hub is located centrally. एकदम बीच में attach होता है बच्चों. Okay, ये centrally located. ये सेंट्रली लोकेटेड हब होता है बच्चों, जिसमें सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं. इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी.
लॉजी। तो बच्चों यही आपको बताया गया है कि the star topology is the arrangement of network in which every node is connected with central hub or switch और a central computer। बेटा जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इसमें सेंट्रली लोकेटेड हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ये जो हब या स्विच होता है ये मेन क्या होता है, सर्वर होता है। क्या होता है, सर्वर। ये एक तरीके का सर्वर होता है। बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर ए बी सी डी, व्हाटएवर द कंप्यूटर, यू कैन से दैट ऑल दिस कंप्यूटर आर कंसीडर्ड एज क्लाइंट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? hub is considered as the server and rest of the computers are considered as clients. So this is the arrangement in this where A B C D are clients and hub is a server. I hope you get the point. I hope you get the point. Yes, sir. Do you have any problem from this point? No, sir. Crystal clear. Okay. Now you can see that coaxial cable RJ45 cable used to connect this computer by my dear student। ये RJ45 केबल होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, RJ45 केबल, राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने केबल देखी जरूर होगी, इस तरीके की केबल। दिस इज कॉल्ड RJ45 केबल। कैन यू सी दिस केबल? Yes, sir. This is called RJ45 cable. This cable is basically used to connect all the computers with each other, okay, with the server. So this cable is used in a ring, and you can say that in a star topology to connect with server to a client. Have you got my point? Yes, sir. Okay. Shall we move? Now, my dear student, you can see that working. Okay. हो गया। Now, my dear students, hub or switch are mainly used to connect the devices by physical star topology. My dear student, this is a way to have connect the star topology physically. That means we use wire. इसमें बेटा वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी में टोटल ही वायर टेक्नोलॉजी होती है, इसमें कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। दिस स्टार टोपोलॉजी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन। सबसे इजी होती है, सबसे आसानी से हो जाने वाली टोपोलॉजी होती है। आप सब भी घर में यूज कर सकते हैं और यूज करते भी होंगे, आई थिंक। ओके, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लीजिए घर में अगर कोई स्विच है तो इससे अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते हैं, या घर में कुछ जितने भी डिवाइसेस है अगर उनको सॉकेट से कनेक्ट करना होता तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, स्टार, एक तरीके की स्टार टोपोलॉजी हो गया। समझ आई बात? नो, एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। फर्स्ट एडवांटेज, एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मींस we have to easily detect which computer got failed। हमको पता चल जाता है कौन सा कंप्यूटर फेल हो गया है बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। so troubleshooting is quite efficient in star topology as compared with bus topology। in a bus topology management has to be inspect the kilometers of cable। आपको बहुत दूर तक की केबल को ढूंढना पड़ता था बस टोपोलॉजी में, but in this case there is no problem in this, you can easily find out which computer have problem। okay, in star topology all the stations are connected to the centralized network। there are network administration has go to the single station to troubleshoot the problem। okay, यहाँ पे एक ही स्टेशन में सारा काम हो जाता है, यानी जो कंप्यूटर खराब है बस उसी कंप्यूटर को आपको ठीक करना है, पूरे नेटवर्क को चेक करने की जरूरत नहीं है। network control, the second advantage, network control। the complex network control feature can be easily implemented in this star topology। any change made in the star topology are automatically accommodated। हमारे स्टूडेंट, इसमें क्या है, प्रॉब्लम नहीं आती है कि कोई मान लीजिए आपने नया कंप्यूटर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, मान लीजिए 4 कंप्यूटर्स मैंने लगे हुए थे, सपोज यू नो दैट in our system, in our arrangement you can see that there are 4 computers, okay, A B C D, there are 4 clients, and if I add one more client, suppose this one,
क्लाइंट ई, कंप्यूटर ई, ये कंप्यूटर ई है। हैव यू गॉट द पॉइंट? यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर ऐड करना बहुत इजी होता है, जिससे नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि बस टोपोलॉजी और इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी में कोई भी नेटवर्क अगर नया कंप्यूटर ऐड करते हैं नेटवर्क में, देन द नेटवर्क विल बी डाउन, नेटवर्क डाउन हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता था। बट इन दिस टोपोलॉजी देयर इज नो सच इश्यूज। हैव यू गॉट द पॉइंट? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, the next advantage is limited failure. Okay, my dear student, as each station has connected to the centrally hub with their own cable, therefore the failure is one cable will be not affected the entire network. जैसा मैंने बताया कि इसमें सारे कंप्यूटर एक ही स्टेशन यानी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो देयर इज वेरी लिमिटेड और नो चांस टू कनेक्ट टू फेलियर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क फेल होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है फेमिलियर टेक्नोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी फेमिलियर टेक्नोलॉजी एज टूल और कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है बच्चों। बस यही सबसे अच्छी इसके एडवांटेज है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है इसका, इट सपोर्ट द बैंडविड्थ ऑफ 100 Mbps। 100 Mbps की डेटा स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 Mbps की स्पीड से हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, स्टार टोपोलॉजी का, दैट वी कैन ट्रांसमिट डेटा अप टू 100 Mbps। डिसएडवांटेज की बात करें, इन द सेंट्रली हब और स्विच गोज डाउन, देन ऑल द कनेक्टेड नोड्स विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर मान लीजिए इसका कोई भी सेंट्रल, अगर मान लीजिए इसका सर्वर फेल हो गया, जिस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, अगर मान लीजिए सर्वर काम करना बंद कर देगा, इफ सपोज सर्वर इज फेल, ये स्विच अगर फेल हो जाएगा, नोड फेल हो जाते फर्क नहीं पड़ता, अगर ये स्विच फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो सारा नेटवर्क फेल। इफ द स्विच इज, इफ द सर्वर और हब और स्विच इज फेल, then the entire network will be failed. Any doubt? No, sir. इसके अलावा केबल, sometime cable routing become difficult when the significant amount of routing is required. Okay, कभी कभी क्या होता है बेटा, एक केबल राउटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि अगर सर्वर फेल तो सारा नेटवर्क फेल, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। किसकी बात करते हैं? ट्री टोपोलॉजी। बच्चों ट्री के बारे में आप जानते होंगे, व्हाई वी कॉल्ड इट ट्री। ट्री क्यों कहते हैं इसको, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, ट्री जो होता है उसमें एक मेन ब्रांच होती है, बाकी सारी सब ब्रांचेस होती हैं। देखिए क्या होती है, अगर मैं ट्री की फिगर की बात करूं, अच्छा ये समझ में आएगा बेटा स्टार टोपोलॉजी? Yes, sir. ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। Now the fourth topology is tree topology. Tree topology. What is tree topology? Tree topology is the topology where there are sub branches. Okay, उसमें सब ब्रांचेस होती है। जैसे अब मैं बात करूं, अगर मैं एक फिगर दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप, माय डियर स्टूडेंट, टू ट्री टोपोलॉजी में देखिए ये एक नोड का एक पूरा सेट है, दूसरा ये पूरी नोड का सेट है, लेफ्ट में नोड्स है, राइट में नोड्स है, और सब कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। बेटा बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का कलेक्शन क्या कहलाता है? ट्री टोपोलॉजी। इसमें बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी दोनों होती है। तो स्टार टोपोलॉजी देखिए क्या होता है, देखिए अगर आप बात करें बस टोपोलॉजी को, बस टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, द रीजन, सॉरी, ट्री टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में सबसे बड़ी बात होती है, इसमें एक बैकबोन केबल होती है। क्या होती है? बैकबोन केबल। आपको पता बैकबोन केबल किसमें होती थी? बस टोपोलॉजी में। और दूसरा ये किसका कॉम्बिनेशन है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बच्चों क्या होता था, इसमें मेनली एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था, सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते थे। तो ये कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता था। सपोज ये यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये मान लीजिए इसका सर्वर हो गया, हब हो गया, और ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स में कनेक्ट हो गए। एक, दो, तीन। तो तरीके से यहाँ पे भी एक सेंट्रल कंप्यूटर हो गया,
लेफ्ट साइड राइट साइड में यहाँ से भी छोटे छोटे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए। My dear student, you can see that there are mainly two branches. आप देख सकते हैं 2 ब्रांचेस हैं, एक लेफ्ट ब्रांच एक राइट ब्रांच। ओके, मैं थोड़ा सा मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा थोड़ी सी। एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच हो गई, दो ब्रांच हो गई। ठीक है, एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच। देखिए बच्चों, एक बैकबोन केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ये सर्वर एक ये भी एक हब है, इन कंप्यूटर्स के लिए एक हब है, और ये इन कंप्यूटर्स के लिए क्या है, एक हब है। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों, एक ही कंप्यूटर में 2 हब्स हैं, बाकी किससे कनेक्टेड है, बैकबोन केबल से। So you can see that this is how we have to connect our server, our tree topology, where we have to combine this bus topology and star topology. You can see that there are 2 hubs which are considered 2 branches of tree topology. Okay, कोई डाउट बताइए? No, sir. No, sir. कंफर्म, इजी है तो? Yes, tree sir. topology is a combination of bus topology and star topology, as I told you earlier. Second is a tree topology is a sorry my dear student, a tree topology is a type of architecture in which all the computers connected with each other in the hierarchical fashion. एक hierarchical fashion में होते हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऑर्डर होता है। The top most node in the tree topology known as root node, and all the nodes are descending to the nodes. There is only one path between the 2 nodes for data transmission. Thus it form the पेरेंट चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक। माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होता है इसमें, एक रूल होता है, सबसे टॉप मोस्ट होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो होता है रूट नोड। जैसे अगर मैं बात करूं, सर्वर की बात करूं, तो ये मान लीजिए एक रूट नोड हो गया, और बाकी सारे क्या हो गए, चाइल्ड नोड हो गए। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो होगा पेरेंट नोड, और उसके नीचे वाला होगा चाइल्ड नोड। ओके, तो कुछ इस तरीके का हायरार्की फॉलो करता है। ओके, तो अगर मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं आप लोग, डियर स्टूडेंट्स, Yes, sir. ये Yes, देख रहे हैं sir. आप लोग फिगर? ये देखिए, इसमें एक डिवाइस 1 है, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5, डिवाइस 6, डिवाइस 7। तो ट्री टोपोलॉजी का सबसे बेस्ट समझने का एग्जांपल यही है। इसमें क्या है, जो एक सबसे बड़ा ऊपर जो नोड है डिवाइस 1, वो क्या है, वो है पेरेंट। डिवाइस 1 के लिए चाइल्ड कौन कौन है, डिवाइस 2 और डिवाइस 3। समझ में आई बात बच्चों? और डिवाइस 2 के लिए चाइल्ड कौन से, डिवाइस 4 और डिवाइस 5। उस तरीके से डिवाइस 3 के लिए चाइल्ड कौन से, डिवाइस 6 और डिवाइस 7। तो इस तरीके से बेटा जो टॉप मोस्ट डिवाइस है डिवाइस 1, इसको बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। क्या बोलते हैं, Root node. रूट नोड। और बाकी समझ में आई बात बच्चों? ये हायरार्की में फॉलो होता है, यानी ऑर्डर में चलता है ये नोड। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। समझ आ गए बच्चों? Yes, sir. आ गई। याद देखिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फिर मैं फिगर के थ्रू समझाता हूं। याद रखिएगा बच्चों, जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, तो सबसे ऊपर वाला नोड होता है वो कहलाता है रूट नोड। इसके रूट नोड यानी डिवाइस 1 के कितने चाइल्ड है, दो हैं, डिवाइस 2 और डिवाइस 3। उसी तरीके से डिवाइस 2 के 2 चाइल्ड हैं, डिवाइस 4 और डिवाइस 5। और डिवाइस 3 के कितने चाइल्ड, डिवाइस 6 और डिवाइस 7। दिख रहा होगा आप लोगों को। ये इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट करता है, यानी जो सबसे ऊपर होता है डिवाइस 1, वो टॉप मोस्ट रूट होता है, वो टॉप मोस्ट, उसको बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। So my dear student, this is how we have to understand this tree topology. समझ में आई बच्चों? बताइए। Yes, sir. चलिए, अभी भी कोई डाउट है? No, sir. कंफर्म? फिगर से सब कुछ क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर आपको फिगर Yes, याद sir. रहे, अगर फिगर याद हो गई, तो मेरे ख्याल से पूरा, और उसमें कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं।
ठीक है, अगर फिगर आपको समझ में आ गई देन आई थिंक देयर नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। बच्चों यू कैन सी दैट ना पेज। Yes, sir. एडवांटेज क्या है इसके? द ट्री टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड अ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन सिंगल सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग एट्यूशन। बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस की डेटा ट्रेवलिंग के लिए यूज होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रेवल कराना होता है तब इसको इजीली लगा सकते हैं, यूज करते हैं। इजी एक्सपेंशन, देखो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नेटवर्क डाउन नहीं होता है। मान लीजिए 4 कंप्यूटर थे, आपने एक कंप्यूटर और बढ़ा दिया, टोटल कंप्यूटर 5 हो गए, तो नेटवर्क की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद इजीली मैनेजेबल, ये इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं क्योंकि बच्चों क्या होता है, हम लोग नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कंप्यूटर है तो हमने 2-2 कंप्यूटर करके 6 कंप्यूटर मान लीजिए टोटल, तो हमने 2-2 कंप्यूटर्स को डिवाइड कर देते हैं। या चाइल्ड, जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इस टोपोलॉजी का, मान लीजिए डिवाइस है, इसका रूट नोड है, इसमें ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है। तो राइट साइड वाले को मान लीजिए मैंने एक पोर्शन डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड वाले को मैंने एक पोर्शन डिवाइड कर दिया। तो जिस पोर्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, या तो लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम आएगी या राइट वाले में प्रॉब्लम आएगी, हम लोग इजीली समझ सकते हैं। मुझे पूरे कंप्यूटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, जिस रीजन में प्रॉब्लम आई मुझे खाली उस डायरेक्ट रीजन को, मुझे रीजन में जाना होगा। डिवाइड करने का फायदा ये होता है कि जिस रीजन में प्रॉब्लम है मुझे सिर्फ उसी रीजन को चेक करने की जरूरत है। ओके, इसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर वेरी इजी इन ट्री टोपोलॉजी। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन बहुत इजी होता है ट्री टोपोलॉजी में। लिमिटेड फेलियर होते हैं, और इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग, यानी कि इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। पॉइंट टू पॉइंट राइटिंग होती है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही हाई कॉस्ट का होता है, यानी इसमें डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन वेरी कॉस्ट, यानी इसमें जो डिवाइस लगते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, इतना इजी नहीं होता है। और सेकंड इज फेलियर, इफ अ ट्री इज फेल्ड, अगर मान लीजिए टोपोलॉजी फेल हो जाती है, मान लीजिए इसमें अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उसको डैमेज करने में, दोबारा बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत पैसा खर्च होता है। दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेजेबल, यानी डिफिकल्टी मैनेजेबल है, यानी इसमें खर्चा बहुत आता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नॉट वेरी पॉपुलर नाउअडेज। ओके, so this is how we have to understand. My dear student, today I have to wind up this class, and I just want to say that, do you have any problem from this two topology, star topology and tree topology? Tell me. No, sir. बच्चों आराम से देख लीजिए, मैंने जो स्टार टोपोलॉजी का, जो उससे पहले मैंने जो बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई थी, उसको भी देख लीजिएगा, और इसके अलावा इसको भी देख लीजिएगा। अभी कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। नोट्स की चिंता आपको करनी नहीं है, आपको पता है बहुत इजी लैंग्वेज नोट प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर से आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मेरा वो जो व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है। ओके, कंप्यूटर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर 10th E, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नोट्स आपको कल परसों तक मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। कल जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला, टुमारोज टॉपिक विल बी मेश टोपोलॉजी एंड this hybrid topology. I hope you understand, my dear students. From this point I just wind up this class. Have a nice day, have a great life. See ya, bye.